So good morning once again. Heat flow. Now today we will discuss heat flow through rectangular fins. This is the diagram of your heat rectangular fins. Okay. So we can find the heat flow through this element at distance x of thickness dx. So we will know that in conduction there's a heat transfer through element. So qx is the heat transfer at distance x, and qx plus dx is the heat transfer at distance x plus dx. And there is a convection heat transfer, that is q convection is also over here. So the length of this L is the length of this small l represent the length of fin. So generally perpendicular to surface from the जो हमारा heating surface है, it always perpendicular to this. Okay, so that is called length. Let me make it that. Okay, then B we will take width of the fin. Okay, so this is we are generating a general equation. Okay, so this is the B, this is the width of the fin, and Y is the this is Y. Y is the thickness of the fin. Okay, this is the Y, this is the length, this is width, and this is Y width thickness. Okay, so we will take perimeter. P represent your perimeter of the surface, capital P, that is perimeter of the fin. Perimeter of fin, that is equal to, we have to remember the formula, 2 into B plus Y. Okay, so that is a perimeter. This is the formula to calculate perimeter. So B we have, Y we have, so we can use the formula as B 2 into B plus Y. Then ACS, this is area of cross section. This is given area of cross section of this area. Okay, area of cross section. T naught is temperature at the base of the fin over here. This is the T naught base of the fin. Okay, temperature at the base of the fin. Okay, TA is ambient temperature. Ambient temperature और सराउंडिंग टेम्परेचर बोल सकते हो, तो उसके हमारे फिन्स के अराउंड में जो एरिया है इसके सराउंडिंग का टेम्परेचर. ठीक है, सो दैट इज की ए के क्या है, कन्वेक्शन कोफिशिएंट, सॉरी कंडक्शन कोफिशिएंट, ये थर्मल कंडक्टिविटी यू कैन से. Thermal conductivity, and H is your convection coefficient.
Okay, so here are the things that is given to us. Okay, that we have assumed in this diagram. So start the derivation. So we'll move now next. So in order to determine governing differential equation for fan, because we are here to determine the value of temperature, so we have to generate a governing differential equation. Okay, then we will find that by putting the value of constant boundary condition, we will find the value of your temperature equation. Okay, so so in order to determine the governing differential equation, okay, so we will consider some heat flow in x direction. At we can see uh, previous, we will take an element at distance x and of thickness dx. Okay, so this is the element we will taking. We have to find the heat transfer through this element, how much heat will be transferred through this element. So again, we will doing this previous thing, so we had done in your conduction chapter. So we will do it again over here. So first of all, what we will find heat conduction into the element at plane x. Into the element at plane x. So it will be generally qx. Okay, so we will find the value of qx. We know Fourier law, so we can imply those Fourier law, that is k into area of cross section, change in temperature with respect to distance. So we are moving in x direction, so it will take x over here. Okay, this is equation 1. Now heat conductor out of the element. सर सिर्फ एक्स डायरेक्शन च कंसीडर करना Just a minute, I will let you know. Because हमने यहाँ पे डायरेक्शन देखी है ना, we have mentioned that this is x direction, so heat is flowing in x direction only. यूनिडायरेक्शनल ले रहे हैं, हमने assumptions यही ली थी. assumption आपको पता होगा, that is steady state heat conduction. ठीक है, uniform heat transfer coefficient. सर Yes, वैसे ही सर ऊपरों भी होना थल्ले भी होना yeah, होगा, definitely होगा, but डायरेक्शन मूव जो हो रही है ना, हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं. जब कंडक्शन की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल विल बी ट्रांसफरिंग हीट फ्रॉम ओनली दिस डायरेक्शन, वी आर टेकिंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक जो ऊपर की तरफ हो रहे हैं, दैट इज वी आर कंसीडरिंग विद कन्वेक्शन. ओके, ठीक है सर कंडक्शन लेंदे पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन च हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारी जो हीट ठीक है ट्रांसफर हो रही है दैट इज इन एक्स डायरेक्शन. क्योंकि हमने ठीक एक पर्टिकुलर, क्योंकि हम इसमें यूनिट डायरेक्शन लेते हैं, जब भी हम हीट ट्रांसफर निकालते हैं ना, इट शुड बी यूनिट डायरेक्शनल, सो हम एक डायरेक्शन में ही लेके चलते हैं. सो हीट कंडक्टेड out of the element so जो एलिमेंट से हीट बाहर जा रही है एट प्लेन, कितना होगा x प्लस डी एक्स. ओके, तो हमारी जो डिस्टेंस है वो दैट इज x प्लस डी एक्स हो गई. सो इट विल बी क्यू एक्स प्लस डी एक्स. So this we know that what we can write it at. So इसको हम सिंपली दो तरीके से लिख सकते हैं. Either we can write qx plus dy dx qx into dx. ठीक है,
तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, वी हैव डन बिफोर अर्लियर, व्हाट इज दिस। ओके, अब ये आ गया हमारी क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट जो हीट इसमें हो रही है, दैट वो भी हमने डिस्कस किया प्रीवियसली, जो इसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, दैट इज डन बाय कन्वेक्शन। सो दिस हीट विल बी नाउ, सो heat convected out of the element out of the element ठीक है, between the plane x and जो हमारे dx plus dx है, so it will be q convected will be equal to, अब q convected का इसमें क्या होगा, q convection में फार्मूला h into surface area। surface area क्या है, क्योंकि it is from surface, so we will take surface area, so it is perimeter into dx into temperature T जो एलिमेंट के ऊपर है, ठीक है, एट एक्स टी माइनस टी है, ठीक है, टी माइनस टी है। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर, इसको तीन देने दे सकते हो, ठीक है। तीन, अब हमारे पास नेट तीन हीट हमने कंडक्टर कन्वेक्टर निकाल ली, कौन जो हमारे एलिमेंट से रिलीज हो रही है, निकल रही है एलिमेंट की, जो हम एलिमेंट के ऊपर स्टडी कर रहे हैं। तो ये तीन हीट है जो वहां पे प्रेजेंट है, ठीक है। सो अब हम इसमें क्या करेंगे कि इन हीट को किस तरह बैलेंस कर रहे हैं, कि कितनी हीट आ रही है और कितनी हीट निकल रही है, सो दैट वी आर बैलेंसिंग द, यू कैन से, एनर्जी। सो नाउ, सॉरी, now applying an energy balance, जब एनर्जी बैलेंस अप्लाई करेंगे, so we can see that in the diagram that यहाँ पे एंटर क्या हो रही है, हम हमारे यहाँ पे एंटर सिर्फ क्यू एक्स हो रही है, ठीक है, और जो एग्जिट हो रही है वो कौन सी है, क्यू एक्स प्लस डी एक्स एंड क्यू कन्वेक्शन। सो वी कैन राइट इट एज in form of energy balance, qx is equal to qx plus dx plus, because it is also outside, going outside, so q convection, ठीक है। तो ये इसमें ऐड हो गई। So now putting the value of q, all the things over here, sorry, so now putting the value, you can write it as, generally we know that qx equal to qx plus dy dx of qx into dx plus h p into dx into t minus ta। ओके, तो ये आ गया हमारे पास इक्वेशन। तो qx से ये qx किया, now putting the value of qx over here, d upon dx minus k
ACS, area of cross section, dt by dx into dx plus h p into dx t minus TA एम्बिएंट टेम्परेचर। तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो। अब यहाँ पे हमें पता है कि k कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, ठीक है। तो रिमेनिंग टर्म डिफरेंशिएट कौन होगा विद रिस्पेक्ट टू x है, सॉरी। तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस यहाँ पे जीरो बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी जीरो बन गया। इट इम्प्लाइज यहाँ पे क्या बन गया, माइनस हमने ले लिया तो पहले से लगे, यहाँ पे क्या बन गया प्लस k ACS d स्क्वायर t अपॉन dt स्क्वायर सॉरी dx स्क्वायर into dx plus h p dot dx t minus t, just a minute. So this is not minus plus, this is minus because we are taking minus from here. So मैंने यहाँ जब माइनस यहाँ से ले लिया तो इसको पहले से लेंगे तो यहाँ माइनस बन जाएगा, दिस टर्म विल बी माइनस। Okay, so dividing both side by ACX into DX, इससे हम जनरली आप बोल सकते हो यहाँ से कॉमन ले लो या ACS DX, ठीक है। इसको पहली साइड ले जाओ या आप डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ACS DX, तो उसको डिवाइड करोगे सो व्हाट विल हैपन, इट इम्प्लाइज यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे जीरो रहेगा, k d स्क्वायर t अपॉन dx स्क्वायर। फिर जब डिवाइड किया तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये पहली साइड चले जाएंगे, माइनस h अपॉन ACS इंटू p, dx से dx कैंसिल, t माइनस TA। Okay, so this is the remaining value. Now इसको फर्दर सिंप्लीफाइड करके हम लिख सकते हैं, बिकॉज के यहाँ पे हम इसको डिफरेंशियल इक्वेशन में जनरेट करेंगे तो k को हम नीचे ले जाएंगे, सो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। सो यू कैन राइट इट एज d स्क्वायर t अपॉन dx स्क्वायर माइनस h अपॉन p k ACX t minus TA equal to 0. So this is our equation, ठीक है। Give this equation number 4. ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट हो गई है जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है। देन next we will move. So this equation is further simplified by transforming the dependent variable
by defining the सर temperature. क्यों लेंदे ਹੁੰਦੇ हाँ जी, सर के नेगेटिव क्यों लेंदे ਹੁੰਦੇ ये नेगेटिव नहीं होता बेटा, कंडक्टिविटी नेगेटिव नहीं होती, वो टेम्परेचर नेगेटिव होता है, टेम्परेचर को हम शो करने की नेगेटिव होती ठीक है है। ये सर तो हायर पॉजिटिव, टेम्परेचर बिकॉज आप जब देखोगे ना कि टेम्परेचर अब हायर है, हायर से हम लोअर से हायर को लेस करेंगे, सो वहां पे नेगेटिव आएगा, सो दैट इज वाई। So now what we will doing, we are doing changing the temperature into temperature excess. So temperature excess हम लेते हैं, नोट करते हैं थीटा से, थीटा इज टेम्परेचर एक्सेस। ठीक है, सो टेम्परेचर एक्सेस को हम लेंगे, इन नेक्स्ट डायरेक्शन में बात करते हैं, टी एक्स इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू टेम्परेचर एट एक्स, डिस्टेंस एक्स माइनस एम्बिएंट टेम्परेचर। So this is our temperature excess, the value of temperature excess. So we can write the value of temperature excess. ठीक है, so now we will converting our equation, जो equation है इसको temperature excess में we are converting into temperature excess form. So what we will do, we will differentiate this with respect to x. So जब इसको differentiate करोगे तो क्या बनेगा, this will be d theta upon dx। ठीक है, तो ये भी टेम्परेचर हमारा जो है, ये टेम्परेचर x के रिस्पेक्टिव है, तो उसके क्या बन जाएगा, dt अपॉन dx, ये हमारा एम्बिएंट है, कांस्टेंट है, सो इट विल बी 0। ओके, डिफरेंशिएशन दिस 0, अब उसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो क्या बन जाएगा, अगेन डिफरेंशिएटिंग दिस d स्क्वायर थीटा अपॉन dx स्क्वायर, तो किसका बन जाएगा, इक्वल टू d स्क्वायर t अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, चेंज इन टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, और इट इज आल्सो टेम्परेचर, ये हमारा टेम्परेचर एक्सेस है, तो टेम्परेचर एक्सेस की वैल्यू ये है। ठीक है, बट उसको हमने डिफरेंशिएट करके कन्वर्ट कर दिया इस फॉर्मेट में। सो हम अपने जो हमारे पास ऊपर दिया हो गया इक्वेशन नंबर 4, वी कैन पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इनटू इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर एक्सेस। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ dt स्क्वायर बाय dx स्क्वायर इक्वल टू d स्क्वायर थीटा अपॉन dx स्क्वायर। So putting in equation value, putting in equation number 4 ये सर 3 जो एक्सेस दिया, टेम्परेचर क्या ये हम बेटा इसमें एक एक्सेस टेम्परेचर फाइंड आउट कर रहे हैं कि कितना एक्सेस है, कि दोनों में कितना डिफरेंस आ रहा है, टेम्परेचर ऑफ जो हमारा एक्स डिस्टेंस पे टेम्परेचर है और जो हमारा सराउंडिंग का टेम्परेचर है, उन दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, इसको हम टेम्परेचर एक्सेस की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है So putting the value of putting in equation 4, I think 4 ये पिछली वाली, okay 4, so d स्क्वायर t अपॉन dx स्क्वायर को हमने चेंज कर दिया, d स्क्वायर थीटा अपॉन dx स्क्वायर। ठीक है, माइनस, अब हमारे पास लास्ट में प्रीवियस इक्वेशन में देखोगे एक वैल्यू है एच पी अपॉन के ए सी एस। ठीक है, सो इसको हम एक ये बोल सकते हैं, पैरामीटर है, फिन पैरामीटर जिसको बोलते हैं, तो इसको हम डिनोट करते हैं m से। So we can write it here, that is m equal to, या m square equal m equal to स्क्वायर रूट ऑफ m की वैल्यू जो होती है h अपॉन p अपॉन k a c s। ठीक है, ये हमारे पास m की वैल्यू है,
तो हमारे पास वहाँ पे पीछे है जो क्वेश्चन में है वो सिंपल है, नॉर्मल है, तो ये अगर जब उसको नॉर्मल लिखेंगे तो ये इस साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखने के क्या बनेगा हमारे पास, इस वैल्यू विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर इंटू उसकी क्या था, मल्टीप्लाई बाई थीटा था टेम्परेचर, दिस टर्म ये एक्स की इसको एक्स तो एक्स डिस्टेंस पे टी एक्स लिया तो टी दिस विल बी इक्वल टू थीटा, तो क्या बन जाएगा एम स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। एम स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन जनरेट होगी, दिस इज इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, यू कैन आस्क। So these two equations shows our जो हमने 4 और 5 है ये शो कर रही हैं, रिप्रेजेंट our general form of energy equation for one dimensional heat dissipation from extended surface, ठीक है। The parameter m, ठीक है, for the given fin is constant provided the convective coefficient film is constant over whole surface and thermal conductivity is constant with the temperature range, we are considering this. So the general solution of this linear homogeneous second order differential equation, this is your linear and homogeneous second order differential equation generate होगी। So इसका general solution हमें पता होना चाहिए। आप लोगों ने मैथ अगर आपने M1 M2 पढ़ा उसमें आप लोगों ने I think you have studied this, the solution of the general solution of second order differential equation। So इसका होता है जो हमारा वेरिएबल है दैट इज एक्स, तो थीटा हमारे यहाँ पे थीटा है, थीटा विल बी इक्वल टू C1 e रेज टू पावर mx प्लस C2 e रेज टू पावर माइनस mx। आप लोगों ने पढ़ा है ये मैथ में सॉल्यूशन? तो उसको थीटे को आप लिख सकते हो t माइनस टी नॉट, t माइनस टी है, ठीक है। So value will be same, C1 e raised to power m minus mx plus C2 e raised to power minus mx। तो ये हमारे पास एक सॉल्यूशन जनरेट हो गया, ठीक है। तो इससे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ थीटा इन टर्म ऑफ एक्स। सो यहाँ पे हमारे पास है C1 एंड C2, दीज आर द कांस्टेंट, ठीक है। सो दीज आर टू बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग प्रॉपर बाउंड्री कंडीशन, ठीक है। सो उसमें हम बाउंड्री कंडीशन लगा के वी कैन फाइंड different solutions, that is there are different cases generated, that is case 1 you can say the fin of infinite long and temperature at end of the fin is essentially that of the ambient of surrounding fluid। second case banega the end of the fin is insulated, and third case banega if fin is of finite length and losses are convectional। So these are the three cases that we will study in your next class, okay। So these cases